سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے ہب پمپنگ سٹیشن پر اچانک بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا، جس کے نتیجے میں ہب رائزنگ مین کا شیل نکل گیا اور پانی کی لائن میں اوور فلو ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اطلاع ملتے ہی واٹر کارپوریشن کے افسران اور انجینئرنگ ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی خصوصی اعداد پر ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام کا آغاز کیا گیا، جو 10 گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کر لیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد ہب رائزنگ مین کو چارج کیا گیا اور ہب پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ مرمتی کام کے دوران ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کا پانی مکمل بند ہو گیا تھا۔ غیر قانونی ٹینکر مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ کا ترقیاتی کاموں کا منصوبہ بنانے کی بھی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سڑکوں، اسکول، اسپتال، ڈسپنسری، ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ پانی چوروں کے خلاف کراچی انتظامیہ کا بڑی کارروائیاں، شہر میں 243 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار، 212 مقدمات درج، 103 افراد گرفتار۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، کہا 3200 ٹینکرز کو کیو آر کوڈ کے ساتھ رجسٹر کیا گیا۔ واٹر بورڈ کی آمدن میں 6 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ میئر کراچی اور ایم ڈی واٹر کارپوریشن کی ہدایت پر پانی چوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ واٹر کارپوریشن کے اینٹی تھیفٹ سیل نے کارروائی کرتے ہوئے منگو پیر، جنجال گوٹ، خیر آباد اور پیر آباد میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے۔ انچارج اینٹی تھیفٹ سیل سید مشتاق احمد نے کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے موقف جاننے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ یہ ہماری پوری ٹیم ہے، اینٹی تھیفٹ کی ٹیم نے ایک ہفتے سے ہمارا ڈرائیو شروع ہے، جو ہم ایلیگل ہائیڈرنٹس، ایلیگل کنیکشنز اور سب سوائل وغیرہ جو بھی ایلیگل چل رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، جس میں ہماری ٹیم کے انچارج ہیں، تھیفٹ سیل کے انچارج ہیں مشتاق صاحب، یہ اس میں موجود ہیں۔ اس آپریشن کے اندر ہم نے زیبو گوٹ ہے، اب پچھلے ہفتے سے جو ہم کر رہے ہیں پوری ہماری ڈرائیو چل رہی ہے، اس میں جنجال گوٹ ہے، زیبو گوٹ، جنجال گوٹ نے زیادہ بڑا آپریشن کیا، اس میں ہمارے رینجر بھی ساتھ تھی اور ہمارے پولیس بھی ساتھ تھی۔ زیبو گوٹ ہے اور آپ کے جو ہے سائٹ سپروائزر کا علاقہ ہے اور اورنگی بنارس والا علاقہ ہے، ان علاقوں میں کافی آپریشن کیے اور آپ پیچھے دیکھ بھی رہے، ہم ان کے ساتھ سامان ضبط کر کے، مشینیں ضبط کر کے کافی نقصان دیا ہے۔ اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ اتنا نقصان ہوا ہے تو جن کا نقصان ہو گیا ہے وہ دوبارہ شاید اس کام کو اب نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو اتنا سامان ہم لے کے آئے ہیں تو زیادہ گھر سے لے کے نہیں آئے ہوں گے، یہ ہم نے آپریشن کر کے لے کے آئیں گے۔ اس پہ ہماری جو ٹیم ہے، اس میں مشتاق ہے، ان کی پوری ٹیم شامل ہے، ان کی انتھک محنت ہے اور ضابط ہے ہمیں میر صاحب اور ہمارے ایم ڈی سید جناب محمد صدیقی صاحب، احمد علی صدیقی صاحب کے ہدایت ہے کہ یہ آپریشن تیز سے تیز کرو، ڈیلی بنیاد پہ کرو، صبح شام کی بنیاد پہ کرو، کیوں آپریشن صبح بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آج رات بھی ہمارا آپریشن ہے اور ہب ریور کی طرف ہم یہ آپریشن کریں گے، انشاءاللہ دعا کریں وہ کامیاب ہو۔ شہر کی اسٹریٹ لائٹس کو درست کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے محکمہ انجینئرنگ کو احکامات دے دیے۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی دانیال علی شان کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے مرکزی شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا کام جاری ہے۔ مرکزی شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کو سولر پینل منتقل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ برسات کے بعد ہونے والی اپنا خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کی ٹیمز نے اسٹریٹ لائٹ کی مینٹیننس اور ریپیئر شروع کر دیے، جس کا کل یونیورسٹی روڈ سے اور شرح فیصل سے کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروجیکٹ تھا سولرائزیشن کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ انیشلی ہم نے 3 اسٹریٹ لی تھی، جس میں سے میرین ڈرائیو پہ کام اپنا شروع ہو چکا ہے اور سولر لائٹ یہ اپنا لگ رہی ہیں۔ ہوپ فلی 30 سپٹمبر تک یہ تینوں اسٹریٹ سولر پہ منتقل ہو جائیں گی۔ ان کو امیڈیٹلی ریپلیسمنٹ کرنے کا کہا گیا، جس پہ ٹیمیں دن رات ہو کے اور اپنا ان کو لائٹس کو چینج کر رہی ہیں، جہاں جہاں خرابی ہے لائٹ جل رہی ہے تو ٹیمیں اس کو امیڈیٹلی یہ اپنا جلدی اس کو چینج کر رہی ہیں۔ سندھ کے 2 سرکاری محکموں کے افسران کے اختلافات، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے 4 قدیمی گوٹھوں کا مستقبل خطرے میں، بورڈ آف ریونیو اور کچی آبادی اتھارٹی کا تنازعہ جاری۔ سندھ اسمبلی کی کچی آبادیوں کے متعلق قائمہ کمیٹی کے چیئرمین انجینئر عثمان احمد کہتے ہیں کہ آج چیف سیکرٹری سندھ کو تحقیقات کے لیے لکھ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کی گئی 2022 میں اور پھر 2024 اپریل میں یہ 3 آبادیاں ڈی نوٹیفائی کر دی گئیں کچی آبادی کی طرف سے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے نوٹیفائی کی تو ڈی نوٹیفائی کس گراؤنڈ پہ؟
अच्छा, सवाल का जवाब कोई कारकर्दगी या कोई ऐसा कोई रिजिड नहीं आता कि उसके ऊपर आप कोई बयानियाँ बना सकते हैं। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जब इन्होंने इसको डीनोटिफाई इन्होंने इस ग्राउंड पे ऊपर किया कि रेवेन्यू ने कहा कि हम एनओसी इसकी विड्रॉ करते हैं और ये आबादी जो है वो हम इसको एनओसी नहीं देंगे। तो बेसिकली ये कच्ची आबादी का इंटरनल जो आपस में जो डीजीज़ का रिफ्ट था वो निकल के दो डिपार्टमेंट्स में आ गया। तो रेवेन्यू वर्सेस कच्ची आबादी, आज भी कायमा कमेटी के इजलास में जो बातें सामने आई हैं, रेवेन्यू ये कहता है कि हमने इनको कोई भी एनओसी नहीं दी है। और अगर कॉटन जिनस फोरम ने कपास की फसल बड़े पैमाने पर मुतासर होने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। चेयरमैन कॉटन जिनस फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि सैलाब और बारिशों के बावजूद मुल्क भर में कपास की फसल अब तक महफूज है। उनका कहना है कि सिर्फ बहावलनगर और मुजफ्फरगढ़ में कपास किसी हद तक मुतासर हुई है। चेयरमैन कॉटन जिनस फोरम के मुताबिक पंजाब में रुई की निर्ख 16,300 जबकि सिंध में 16,000 रुपये फी मन पर मुस्तहकम है। ताहम बारिशों और सैलाब के बायस तरसीली निज़ाम मुतासर होने से रुई की खरीदो फरोख्त महदूद हो गई है। कराची में एक और अनोखा वाकया, शहर में जाली सीमेंट फरोख्त करने वाले सरगर्म इंतजामिया ने जाली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। खुफिया इत्तला पर कोरंगी में जाली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, जिसमें 8 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो ने कहा कि सीमेंट बनाने वाली जाली फैक्ट्री के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान 300 से ज्यादा सीमेंट की बोरियां बरामद की गई। सिंध में आइंदा साल फरवरी तक गंदम का जखीरा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर से मुतल्लिक़ इजलास में ऐलान। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे के पास फरवरी के अख्ताम तक के लिए वाफिज ज़खायर मौजूद हैं, जबकि नई गंदम की फसल मार्च में दस्तयाब होगी। इजलास को बताया गया कि इस वक्त सिंध के पास 13 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। वज़ाला के सवाल पर बताया गया कि सिंध और बलोचिस्तान के लिए मुश्तरका तौर पर माहाना गंदम की ज़रूरत 4 लाख टन है, जबकि आम मार्केट में मज़ीद 6 लाख टन गंदम दस्तयाब है। वज़ाला ने कहा कि मौजूदा ज़खायर सूबे की फरवरी 2026 तक सहारा देने के लिए काफ़ी है। हुकाम ने बताया कि नई फसल मार्च में आने की तवक्को है, जिससे सप्लाई का तसलसल कायम रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की वोटर लिस्ट और पोलिंग स्कीम जारी कर दी। शहर के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1,14,439 है। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई। जिला गरबी TMC मंगोपीर यूसी 10 में कुल 6 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 8,490 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 4,998 मर्द और 3,492 खवातीन शामिल हैं। जबकि जिला गरबी TMC औरंगी यूसी 1 में 29 पोलिंग स्टेशन होंगे, जहाँ 45,788 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। 25,609 मर्द और 20,179 खवातीन अपना वोट कास्ट करेंगी। जिला गरबी TMC औरंगी यूसी 7 में 10 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 16,881 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 9,013 मर्द और 7,848 खवातीन शामिल हैं। जबकि जिला शर्की TMC सुराबगोड यूसी 8 में 4 पोलिंग स्टेशन होंगे, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,795 है, जिनमें 3,088 मर्द 1,708 खवातीन शामिल हैं। इसी तरह जिला किमाड़ी TMC बल्दिया यूसी 8 में 22 पोलिंग स्टेशन कायम हैं, जहां 38,505 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। 21,661 मर्द और 17,144 खवातीन शामिल हैं। कराची के तीनों इजला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स ने डीजल की बढ़ती कीमतों को बड़ा बोझ करार दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुश्किलात में घिर गया। पेट्रोल की कीमत जूं की तूं, लेकिन डीजल फिर महंगा हो गया। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार रखी गई। ताहम डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल अब 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल तो सस्ता होना चाहिए, हमारा सारा दारोमदार इसी पर है, मामूली इजाफा भी हमें हजारों रुपए का पड़ता है। जब डीजल महंगा होता है तो फिर बोझ तो बढ़ता है ना, तो ये जो माल बरदार गाड़ियाँ जितनी भी हैं इन पे ये काफी असर पड़ता है डीजल महंगा होने की वजह से। ये तो अच्छा नहीं किया, जब डीजल महंगा हो गया तो सारा काम खराब हो गया।
डीजल महंगा तो फिर गाड़ी वाले का बहुत नुकसान, ऐसे भी काम खराब है, जब डीजल महंगा हो तो उसका सारा काम बहुत खराब हो जाएगा। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। वो चाहिए कि भाई पेट्रोल कम करें, हालात देख रहे हैं, खुद तो चलो ठीक है सेटिंग में है, लेकिन गरीब आवाम का उनको कोई ख्याल नहीं, पैसे भी नहीं आता है, खुदा उनको हिदायत दे। पेट्रोल एक गरीब इंसान है ना, गरीब इंसान मजदूरी के लिए निकलता, चाहे वो बाइक के वाला हो या जॉब करता हो, कुछ भी है, उसमें डीजल आ जाए, पेट्रोल आ जाए, ये समझो एक रुपये बढ़ना हमारे ऊपर 10 रुपये बढ़ने के बराबर है। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इस्तेहकाम आवाम के लिए कदरे रिलीफ है, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा ट्रांसपोर्ट और माल बरदारी के शोबे पर मजीद दबाव डालेगा। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मानसून का नया स्पेल, शहर कायद में वक्फे से बारिश, शारा फैसल, राशिद मिन्हास रोड, नागन चौरंगी, गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर, गृह मंदिर, एम ए जना रोड और अतराफ में भी बूंदाबांदी। ओल्ड सिटी एरिया, कुरंगी, औरंगी और लांधी में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बता रहे हैं शारा फैसल, राशिद मिन्हास रोड, नागन चौरंगी, गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में रिमझिम, गुलिस्तान जौहर, गृह मंदिर, एम ए जना रोड और एतराफ में भी बूंदाबांदी हो रही है। मानसून का नया स्पेल, शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, शहर में गुटके मावे के खिलाफ पुलिस का सख्त क्रैकडाउन। गड्डाव पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी के खुफिया खानों से दौरान तलाशी भारी मिकदार में छालियां और सामान बरामद हुआ। मुल्जिमान की शनाख्त उबैद और हसनैन के नाम से हुई है। मुल्जिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुटका मावा सप्लाई में मुलव्वस है। गड्डाव पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान नामालूम गाड़ी की तलाशी से भारी मिकदार में छालियां और गुटके का सामान तहवील में लिया गया, जिसमें 27 बोरियां 324 किलो से ज़ायद छालियां बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त उबैद और हसनैन के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान शहर में गुटका मावा की सप्लाई और फरोख्त में मसरूफ़ रहे। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल जाली पुलिस कांस्टेबल की वीडियो पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। बगदादी पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम इससे कबल भी जाली पुलिस कांस्टेबल बनने पर डिफेंस थाने के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल की थी। मुल्जिम की शनाख्त मुर्तज़ा के नाम से हुई है। मुल्जिम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। शहर कायद में बच्चियों से ज़्यादती के वीडियोस स्कैंडल के बाद एक और दिलखराश वाक़या। सुजानी टाउन में 11 साला मासूम बच्ची ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। इब्तदाई पोस्टमार्टम में इंकशाफ हुआ है कि 11 साला आसिया को जिनसी ज़्यादती के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक तमाम सैंपल्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश घर की छत से मिली थी। अहले खाना ने मुबैना हक़ाइक़ छुपाने के लिए कानूनी कार्रवाई से इनकार किया था। बच्ची की जब फंदा लगी लाश मिली तो पुलिस के पहुंचने पर पहले अहले इलाका ने उसे नीचे उतार लिया था। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है, इसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के करीब नाले पर इंक्रोचमेंट की वीडियो वायरल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिस, तजावुजात के खात्मे की हिदायत कर दी। केलेस्टेड बिलों में MUCT टैक्स में इजाफा, टैक्स बढ़ाने के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल हाई कोर्ट पहुंच गए। सैफुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि टैक्स नाफिज करने के लिए कौंसिल की इजाज़त दरकार है, इजाफा गैर कानूनी करार दिया जाए। शाह फैसल कॉलोनी में पार्क की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हाई कोर्ट का एडिशनल कमिश्नर कराची को मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। पार्क और प्राइवेट प्लॉट की पैमाइश करके तहकीकात की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि KMC, KDA, TMC और दीगर इदारों के रिकॉर्ड जायज़ा लें। जो भी गैर कानूनी मामले में मुलविस है जेल में डाल दें। अदालत ने 8 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। 4 साल की कमसिन बच्ची से ज्यादती का केस। अदालत ने मुल्जिम सरफराज उर्फ निक्का को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुल्जिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम को मजीद 6 माह कैद काटनी होगी। सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस।
सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत की समाअत। सरकारी वकील ने बताया कि वीडियो शवाहिद USB की सूरत में मौसूल हो गए हैं। दरख्वास्त गुजार को USB फराहम कर दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में बल्दियाती नुमाइंदों को नज़रअंदाज करने का केस। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिलर सैफुद्दीन और टाउन चेयरमैन की दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत का इज़हार बरहमी। 7 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट का मामला। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की अदम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। रिकॉर्ड की कॉपी दरख्वास्त गुजार के वकील को फराहम करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल सिंध तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंगल को कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 796 पॉइंट्स इजाफे से 1,56,180 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,56,467 तक गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में तकरीबन 800 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 796 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,56,180 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,56,467 तक गया। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक शरह सूद को बरकरार रखने के फैसले के बायस सरमायाकार सरगर्म दिखाई दिए और मार्केट में तेजी देखने में आई। अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक मार्केट ऑलरेडी इसको इनकॉर्पोरेट कर चुकी थी। लास्ट वीक के 2 सेशंस में मार्केट ने अराउंड 2500 के करीब पॉइंट्स की कमी की थी। तो इस हफ्ते के आगाज़ से मार्केट ने ना सिर्फ उस कमी को पूरा किया बल्कि मार्केट फर्दर अपसाइड के ऊपर आपको नज़र आ रही है। देखिए ओवरऑल अगर आप पोजीशन देखें तो काफ़ी जो इंटरेस्ट रेट को लेके फेयर था मार्केट में। जब अनाउंस हुआ कि होल्ड किया गया उसके बाद जो मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हुआ उसमें सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और आप ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। यही वजह है कि जो पिछले दिनों मार्केट ने 1,56,000 की सतह को खो दिया था, अगेन उसको ना सिर्फ सस्टेन किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने कम बैक किया। सरमायाकारों के एतमाद और शरह सूद बरकरार रखने के फैसले ने मार्केट में नई जान डाल दी। काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, सोने ने कीमत ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। आलमी मार्केट में सोना एक ही दिन में $49 महंगा हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा मार्केट में कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $3,692 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इस आलमी इजाफे के असरात मकामी सराफा मार्केट में भी नुमाया हुए। 1 तोला सोना 4,700 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 3,91,000 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,030 रुपये इजाफे के बाद 3,35,219 रुपये हो गई, जबकि 1 तोला चांदी 53 रुपये बढ़कर पहली बार 4,496 रुपये पर पहुंच गई है। PIA को 20 साल में पहला मुनाफा। कौमी एयरलाइन को 2004 के बाद साल 2025 के पहले 6 माह में 11 अरब ऑपरेशनल मुनाफा, जबकि टैक्स के बाद खालिस मुनाफा 6 अरब 80 करोड़ रुपए हासिल किया है। ये पेशरफ्त निजकारी के मंसूबों के दौरान सामने आई, जो बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में बेहतरी होने लगी। PIA के साल 2025 के शिशमाही मालियाती नेताइज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के पहले 6 माह के दौरान PIA ने 112 अरब रुपए की आमदनी हासिल की। कौमी एयरलाइन के मजमूई अखराजात बशमूल ऑपरेशनल इंतजामी और दीगर अखराजात 100 अरब 87 करोड़ रुपए रहे। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में PIA को 11 अरब ऑपरेशनल मुनाफा, जबकि टैक्स के बाद खालिस मुनाफा 6 अरब 80 करोड़ रुपए हासिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक PIA को ये मुनाफा बेहतर इंतजामी हिकमत अमली पर हुई। साथ ही PIA ने मालियाती अखराजात में वाज़ेह कमी और दीगर आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफे के बाइस हासिल हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में दूसरे पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल के उन्वान से खजूरों का मेला TDAP और मुत्तहिदा अरब अमारात के इश्तराक से मुनक़िदा फेस्टिवल में दुनिया भर से अनवाअ इक़साम की खजूरें नुमाइश के लिए पेश की गई। मज़ीद तफ़सीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खजूरें दुनिया भर में मशहूर। एक्सपो सेंटर में खजूरों की नुमाइश सज गई। दूसरे पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का शानदार आगाज। फेस्टिवल में 70 से ज्यादा स्टॉल्स लगा दिए गए। कतर और उर्दन समेत 10 ममालिक की शिरकत। खजूर से बनी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और कॉफी मिक्स भी पेश।
पाम से बने जूते और दीगर एशिया भी रखी गयी। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इवेंट के इनाकात को सराहा। खजूरों की बेहतर ग्रोइंग के लिए वहाँ जो काश्तकार हैं जो खजूर का काम करते हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी और दुनिया में जो नए तजर्बे हो रहे हैं उसे आगाह करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि दुनिया भर में खजूर की काश्त को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए और काश्त के साथ साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए जो बुनियादी तकाज़े होते हैं उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने भी स्टॉल लगाया। खजूर से बनी मुख्तलिफ एशिया मुतारिफ करवा दी गयी। DG अताउल्लाह खान का कहना था कि थर में 38 नई इकसाम की खजूरों की पैदावार की गई है। खजूर से मुख्तलिफ इकसाम की एशिया बनाई जा रही हैं। देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ खजूरों की इकसाम मौजूद हैं और उसकी ग्रेडिंग, उसकी पैकिंग कैसी है, डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड क्या है, हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा। तो इस इवेंट में हमने ये बहुत कुछ फार्मर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। प्रोविंशियल कम्युनिकेशन हेड अक़वाम मुत्तहिदा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन असद अली का कहना था कि बलूचिस्तान में 30 मिलियन यूरो के फंड से ज़राअत और आबपाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये ओवरऑल सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि बलूचिस्तान में है, रिवाइवल ऑफ बलूचिस्तान वाटर सोर्सेज प्रोग्राम, और EU ने फ़ंड किया। इसमें खाली डेट्स नहीं है, इसमें वाटर सोर्सेज मैनेजमेंट है, इसमें जो है ना स्पेट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको बनाना है। इसके अलावा इसके साथ साथ सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक है, उसके साथ साथ हमारे ग्रेव्स वैल्यू चेन है, ऑनियन वैल्यू चेन है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है। जी, एग्रीकल्चर सारा इसमें आता है, इसमें खास वैल्यू चेन्स इसमें शामिल हैं। खजूरों से मुतालिक सेमिनार का भी इनाकाद किया गया। माहिरीन व मंदोबीन ने सेक्टर की अहमियत और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। फेस्टिवल 18 सितंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, CT21।